हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिग्रेशन के जो सम्स थे और एक्सरसाइज 3.2 उसके साथ कंप्लीट की थी और उसके शॉर्ट सम्स, फिर शॉर्ट मेथड, उसके लॉन्ग मेथड, वो सारे सम्स जो थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्ज़ाम में उसमें से नहीं आएगा, लेकिन स्टडी रिलेटेड है। We know the regression is a functional relation between two correlated variables and it is useful to estimate the values of dependent variable for some value given in independent variable. The coefficient of determination is a measure to find reliability of such estimate. को एस्टिमेट की रिलायबिलिटी फाइंड करनी है, तभी ये जो मेजर है वो यूज़फुल है। सपोज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx. द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y obtained from the observations and it is estimated values y cap which are obtained from the regression line is called coefficient of determination and it is denoted by r square. तो उसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर वाई इंटू वाई कैप स्क्वायर। तो यहाँ पे उसको वाई कैप को अलग दिखाया है ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, तो आर वाई एक्स होल स्क्वायर आर एक्स वाई होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर इट इज इंडिपेंडेंट चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, सो वेरिएबल फ्रॉम वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. Subtracting a and dividing by b, the value of r will not change. Since r square equals to r square, we can say that the reliability of estimate of dependent variable y largely depend on correlation coefficient r between two variables x and y. If r equals to plus minus 1, then r square equals to r square and there is a perfect linear correlation between x and y, so we can easily say that the estimate of y is obtained from regression line are 100% reliable. But if r equals to 0, then r square equals to r square equals to 0 and there is no linear correlation between x and y, so we can say that the estimates of y obtained from the regression line are not reliable. It is clear from the above discussion that high value of r square shows that good linear correlation. जो high value है तो ये good correlation है exists between two variables, so we can check whether the linearity assumption of relation is valid or not from the measure of coefficient of determination. If the values of r square is nearer to 1, assumption of linearity of regression is valid, but if the values of r square is nearer to 0, assumption of linearity of regression between x and y is not valid. How much variation in dependent variable y can be explained by regression line can be obtained from the coefficient of determination. Example देखें तो if r equals to 0.9 for some data, then coefficient of determination 0.9 square equals to 0.81. Therefore, r square equals to 100% equals to 81%. So it can be said that the total variation in variable y, the explanation of 85% variation is obtained from the regression line. So we can say that the regression model used for given data is suitable. हम इसका सम करेंगे तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा, इसलिए हम सम पे ही डायरेक्टली जाते हैं. The following table shows the experience of technicians employed in various companies and their monthly salary in thousand. Experience है and monthly salary है. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यहाँ पर डिटर्मिनेशन मेंशन किया है. एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ लिनियरिटी असम्पशन ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड मंथली सैलरी. एन दिया गया है 7 एक्स बार 0 सिग्मा एक्स, यहाँ पे इसका सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन. वाई बार किया है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन. ये दोनों फाइंड किए, इसका आंसर हमको मिला. अब हमको नॉर्मली आर स्क्वायर का फॉर्मूला है वो डालना है यहाँ पे. आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर
एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये हमने जो कोरिलेशन में किया था वही टाइप का फॉर्मूला है। एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया एक्स वाई, तो 12 इंटू 22, ये दोनों कॉलम को हमने ढूंढ के एक्स वाई फाइंड किया। एक्स फाइंड करने के लिए ये कॉलम का हमने स्क्वायर किया है। 12 का 144, 8 का 64, 16 का 256 एंड वाई का तो 22 का 484, 15 का 225, 25 का 625, 30 का 900, 12 का 144। इस तरह से हमने वाई स्क्वायर ढूंढा। बस यहाँ पे हमको फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। एन है 7, सिग्मा एक्स वाई आया हमारा 1980, माइनस सिग्मा एक्स मिला हमको 85, सिग्मा वाई मिला 148 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स स्क्वायर है 1185 माइनस 85 हमको क्या मिला था एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू 7 इंटू 3354 इंटू 148 स्क्वायर, तो 13860 माइनस 12580 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इसको हमने फिगर आउट किया है तो वो वैल्यूज़ मिलेगी। तो फाइनल वैल्यू हमको मिलेगी 16,38,400 डिवाइडेड बाय 16,84,180। तो इसकी वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर की 0.97। So the value of r square is very nearer to 1. So we can say that the linearity assumption of regression between the years of experience and monthly salary is valid. For the above example, we can compute r square by making u equals to x minus a। तो वो शॉर्टकट मेथड से भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमने ये मेथड से ढूंढा है तो ये मेथड ज़्यादा इजी है, तो आप इसी मेथड से ये फाइंड कर सकते हो। आपको होम असाइनमेंट में आपकी स्क्रीन पे ये जो सम्स दिख रहे हैं 4 सम्स, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये बहुत ही इजी सम्स है इसलिए आपसे हो जाएंगे। सो आपको ये कंप्लीट करने हैं और टाइम टू टाइम होम असाइनमेंट सबमिट करके आपको भेज देना है। थैंक यू।